کیا آپ جانتے ہیں کہ 70 کے انتخاب میں علامہ ضیاء الرحمن فاروقی نے ذوالفقار علی بھٹو کو الیکشن میں کیسے ہرایا تھا؟ ان پر نون لیگ کے کس ایم این اے کے والد کے قتل کا الزام لگا؟ مولانا فاروقی کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ دشمن ان کے نام سے بھی خوف کھاتے تھے؟ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے اتحادی ہوتے ہوئے بھی مولانا فاروقی کو کیوں کوٹ لکھپت جیل میں قید کاٹنا پڑی؟ یہ ایک ایسے مذہبی رہنما کی کہانی ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ان کے والد جیل میں تھے اور ٹھیک 44 سال بعد اسی بیٹے کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا۔ اور ہاں، جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کے ساتھ مولانا فاروقی کے ساتھیوں نے کیا بدتمیزی کی تھی اور انہیں دھکے دیتے رہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کی زندگی سے متعلق 20 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، سال 1985 میں ضلع جنگ سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین مولانا حق نواز نے انجمن سپاہ صحابہ کے نام سے ایک نئی مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی تو انہوں نے سمندری فیصل آباد کے نوجوان عالم دین مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت دی۔ مولانا صاحب نے جلد ہی سپاہ صحابہ کو جوائن کر لیا اور جماعتی کاز پر شب و روز محنت کرنے لگے۔ 1988 میں ہونے والے جنرل الیکشن میں مولانا فاروقی کے قائد مولانا حق نواز جھنگوی الیکشن لڑ رہے تھے تو ایسے میں وہ جنگ میں زبردست کیمپین کرتے رہے۔ نمبر 2، نئی مذہبی جماعت میں شمولیت کے بعد سے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی اور انہوں نے کڑا وقت جھیلا۔ فروری 1990 میں مولانا جھنگوی کے قتل کے بعد سپاہ صحابہ کی قیادت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو ملی۔ یاد رہے کہ اس وقت مولانا فاروقی بنگلہ دیش کے دورے پر تھے۔ نمبر 3، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی چاہتے تو وہ خود جنگ سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کر ایم این اے بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے مولانا اسحاق القاسمی کو جنگ سے الیکشن میں کھڑا کیا۔ پہلی بار سپاہ صحابہ نے کامیابی حاصل کی اور مولانا قاسمی ایم این اے بن کر پارلیمنٹ پہنچے۔ نمبر 4، سال 1991 میں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے نائب مولانا قاسمی کو جنگ میں دن دہاڑے گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ قتل کے بعد ان کی خالی کی ہوئی نشست پر مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو انتخاب لڑنے کا مشورہ دیا گیا، لیکن انہوں نے خود انتخاب لڑنے کی بجائے کراچی سے مولانا اعظم طارق کو جنگ کے الیکشن دنگل میں اتارا اور یوں مولانا اعظم طارق پہلی بار ایم این اے بن کر پارلیمنٹ کی راہداریوں تک پہنچے۔ نمبر 5، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے سپاہ صحابہ کے سرپرست کی حیثیت سے دنیا بھر کے اہم ممالک کے دورے کیے۔ ان کے دور میں سپاہ صحابہ ملک کے سب سے طاقتور جماعت سمجھی جاتی تھی اور کوئی سپاہ صحابہ سے پنگا لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جی سی یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق سپاہ صحابہ اس وقت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ عملی طور پر ملک کے 74 اضلاع پر اس کا کنٹرول تھا، جہاں مقامی انتظامیہ اس تنظیم کے سامنے بے بس دکھائی دیتی تھی۔ نمبر 6، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ انتظامی معاملات کو ڈسپلن کے ساتھ چلانے کے ماہر تھے۔ سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کے زمانے میں سپاہ صحابہ کے کل 250 یونٹ اور دفاتر تھے، جبکہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے وقت پورے پاکستان میں ان کی جماعت کے 14,000 یونٹ تھے۔ نمبر 7، 15 نومبر 1995 کے روز بہاولپور کے علاقے خیرپور ٹامی والی کے ایک بڑے شیعہ جاگیردار میاں شاہ نواز پیرزادہ المعروف ڈبہ پیر کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا الزام سپاہ صحابہ کی قیادت پر لگا اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو 20 نومبر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ مولانا اعظم طارق کو بھی حراست میں لیا گیا تھا اور وہ دونوں ایک ساتھ جیل میں قید کر دیے گئے۔ سپاہ صحابہ کے مقامی رہنماؤں کے مطابق شاہ نواز ڈبہ پیر فیوڈل لارڈ تو تھا ہی، لیکن علاقے بھر میں اس کی پہچان ایک سفاک درندے کے جیسی تھی۔ یہ موصوف اپنے ملازمین اور غریب لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے منہ میں پیشاب تک کر دیتا تھا۔ یاد رہے کہ نون لیگ کے سدا بہار ایم این اے پیر ریاض حسین پیرزادہ شاہ نواز کے بیٹے ہیں۔ نمبر 8، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی جن دنوں لاہور میں اپنے ساتھی ایم این اے مولانا اعظم طارق کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید تھے،
तब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि उन दिनों सिपाही साहबा के MPA शेख हाकिम अली सूबाई वजीर थे। शेख साहब मिनिस्टर भी उसी मखलूत गवर्नमेंट में थे जो कि आसिफ अली जरदारी ने बनवाई थी। नंबर 9, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी बला के खतीब और मुकर्रर थे। वो उर्दू के साथ साथ अपनी तकरीरों में पंजाबी जुबान का भी इस्तेमाल किया करते। वो अपनी तकरीर के शुरू में ये गज़ल पढ़ा करते, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। हम सफर ढूंढो ना रहबर का सहारा चाहो, ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। जबकि मौलाना फारूकी अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से किया करते, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। नंबर 10, सिपाही साहबा वाले बारहा फैसलाबाद धोबी ग्राउंड के जलसे का जिक्र करते हैं। इस जलसे आम में मौलाना आजम तारिक और मौलाना फारूकी दोनों शरीक थे। तब मुखालिफ फिरके की जानिब से जलसे पर गोलियों की बौछार कर दी गई। गोलियां भी चलती रहीं और मौलाना साहब अपनी तकरीर भी करते रहे। ये तकरीर आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। नंबर 11, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी ने अपनी असीरी के दौरान 27 किताबें तहरीर की। उन्होंने मजमूई तौर पर 60 किताबें लिखी। उनकी मशहूर तसानीफ में रहबरो रहनुमा, शहीद करबला, फैसल एक रोशन सितारा, खुतबाते सीरत और फिर वही कैदे कफस ज्यादा मशहूर हैं। मौलाना साहब के हवाले से कम लोग जानते हैं कि उनके लिटरेरी वर्क को सराहते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने उन्हें शाह फैसल अवार्ड से नवाजा था। नंबर 12, फरवरी 1997 में इलेक्शन होना था। मौलाना आजम तारिक ने जेल ही में बैठकर जंग, जबकि ज़ियाउर रहमान फारूकी ने कबीरवारा खानेवाल से इलेक्शन लड़ने का इरादा किया। ये रमजानुल मुबारक का महीना था, जनवरी की 18 तारीख और साल था 1997 का। आजम तारिक और ज़ियाउर रहमान फारूकी को पुलिस वैन से लाहौर की सेशन कोर्ट में एडिशनल जज खालिद मियां की अदालत में लाया गया। मौलाना फारूकी अपने जर्नैल आजम तारिक के हाथों में हाथ डाले हंसते मुस्कुराते अदालत के अहाते में दाखिल हुए। यहाँ मौजूद सिपाही साहबा के कारकुनान ने अपने कायदीन पर फूलों की पत्तियां निछावर की और फलक शुगाफ नारों में उनका इस्तकबाल किया। अखबारी नुमाइंदे अपने कैमरे हाथों में लिए फोटोज बना रहे थे। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि 12:10 पर सेशन कोर्ट की इमारत एक रिमोट कंट्रोल बम धमाके से लरज उठी। ये धमाका इतना खौफनाक था कि इंसानी जिस्म से बोटियां कट कट कर हवा में रुई के जैसे उड़ रही थी। गोश्त के लोथड़े दरख्तों और दीवारों से जा चिपके और खून के फव्वारे बहने लगे। 44 साला मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी, पुलिस एहलकारों और सहाफ़ियों समेत 2 दर्जन लोग इस ब्लास्ट की जद में आकर जाँ बहक हो गए। नंबर 13, मौलाना मोहम्मद आजम तारिक 18 जनवरी 1997 को होने वाले सानिया को कुछ ऐसे याद करते थे। जेल के कैदियों को ले जाने वाली बस के हम दोनों मुसाफिर अदालत की जानिब रवां दवा थे और इकट्ठे ही गाड़ी से उतरकर अदालत के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए हम धमाके का शिकार होकर फिजा में कई फुट उछलकर गिर पड़े थे। और अगले ही लम्हे जब मैं होश में आया तो मेरे सामने मेरा वो अजीम कायद दुनिया व माफिया से मुंह फेर कर आलिमे आखिरत की तरफ रफ्ते सफर बांध रहा था। नंबर 14, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी की पहली नमाज जनाजा लाहौर माल रोड पर वाक़या मस्जिद शोहदा में मुफ्ती मोहम्मद ईसा की इमामत में हुई। दूसरी नमाज जनाजा आबाई शहर समुंदरी में तबलीगी जमात के रहनुमा मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ाए, जबकि तीसरी नमाज जनाजा झंग में MPA मौलाना मंजूर चनियोटी ने पढ़ाई। मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी का सिपाही साहबा के मरकज झंग में होने वाला जनाजा यादगार था। तब हालात कंट्रोल करने के लिए सूबे भर की पुलिस, रेंजर्स और फौज को झंग शहर में लगाया गया था। मौलाना फारूकी को जामिया महमूदिया में अपने कायद मौलाना हक नवाज जंगवी के पहलू में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। नंबर 15, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी का पहला जनाजा लाहौर के माल रोड पर हुआ था। 2 जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद भी इसमें शरीक थे। उस मौका पर सिपाही साहबा के कारकुनान ने काजी साहब को ये कहते हुए धक्के दिए कि तो शियों के लिए
नरम गोशा रखते हो, शियों की महफिलों में जाते हो, यही शिया तो हमारे फारूकी शहीद के कातिल हैं। बताया जाता है कि काजी हुसैन अहमद को इतने धक्के पड़े कि उनकी टोपी जमीन पर गिर गई। नंबर 16, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी के फैमिली बैकग्राउंड की बात करते चलें तो वो जलंधर की अराइन बरादरी के सपूत थे। उनके वालिद मौलाना मोहम्मद अली जांबाज की नजरियाती वाबस्तगी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की मजलिस एहरारुल इस्लाम के साथ थी। आज़ादी के बाद मौलाना जांबाज नए वतन की जानिब रवां दवा हुए। वो अभी सफर में थे कि उनकी रेल पर सिख हमलावर हुए। उनके 2 मासूम बेटों और एक बेटी समेत खानदान के दीगर लोगों को ज़िबा कर डाला। वो खुद इस हालत में पाकिस्तान पहुंचे कि उनका सारा जिस्म लहू लहान और जख्मों से चूर चूर था। मौलाना जांबाज अपने कायदो मुर्शद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के हुक्म पर लैलपुर के कस्बे समुंदरी में आकर रहने लगे। नंबर 17, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी के वालिद बुजुर्गवार मौलाना मोहम्मद अली जांबाज ने दूसरी शादी की। एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अताउर रहमान रखा। अगले वर्ष दूसरे बेटे ज़ियाउर रहमान की पैदाइश हुई, लेकिन ये बच्चा ज़ियाउर रहमान फारूकी नहीं था। हुआ कुछ शियों के नौमौलूद ज़ियाउर रहमान और उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। साल 1952 में उन्होंने तीसरी शादी की। 53 की तहरीके खत्म नबूवत में मौलाना मोहम्मद अली जांबाज गिरफ्तार होकर सखर जेल के मेहमान बना दिए गए। जेल में कैद के दौरान 4 मार्च 1953 को उन्हें ये खबर मिली कि आपके घर में बेटे की पैदाइश हुई है। उन्होंने इस नौमौलूद बच्चे का नाम अपने मरहूम फर्जंद के नाम पर ज़ियाउर रहमान रखा। यही बच्चा बड़ा होकर तारीख में अलामा ज़ियाउर रहमान फारूकी के नाम से अमर हो गया। नंबर 18, मजहबी जमात सिपाही साहबा के सरपरस्ती आला मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी की इब्तदाई तालीम खानेवाल, साहिवाल और मुल्तान के मदारिस दीनिया में हुई। अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। मौलाना फारूकी ने दरस निज़ामे के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी की। उन्होंने अमली सियासत की शुरुआत मौलाना मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमा इस्लाम से की। नंबर 19, 1970 में होने वाला जनरल इलेक्शन एक लिहाज से बहुत दिलचस्प था। डेरा इस्माइल खान के हल्के में मौलाना मुफ्ती महमूद के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन दंगल में उतरे हुए थे और वैसे भी उन दिनों भुट्टो साहब का तोती बोलता था। भुट्टो का इलेक्शन सिंबल तलवार जबकि खजूर का दरख्त मुफ्ती महमूद का इंतखाबी निशान था। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भुट्टो के सपोर्टर्स ये कहते थे कि हमारी तलवार ने तुम्हारी खजूर को काट डालना है। डेरा इस्माइल खान के इस हल्के में जवान साल ज़ियाउर रहमान फारूकी अपने सैकड़ों साथियों के हमरा शब रोज मेहनत करते रहे। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 33,000 के मुकाबले में मौलाना मुफ्ती महमूद के पलड़े में 46,000 वोट आए और यूं मुफ्ती महमूद ने कायदे अवाम मिस्टर भुट्टो का गरूर खाक में मिला दिया। नंबर 20, सकूत ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में पावर में आए जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्ती महमूद चीफ मिनिस्टर बने। ऐसे में मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी कुछ अरसे तक मुफ्ती महमूद के ऑफिस में काम करते रहे। जल्द ही उन्हें जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब का सदर बना दिया गया। वो एक तवील अरसे तक जमीयत से वाबस्ता रहे और मुल्क भर में अपनी तकरीरों के जरिए नफाज इस्लाम की जद्दोजहद करते रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मौलाना हक नवाज जंगवी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। मौलाना इसारुल कासमी के फैक्ट्स के लिए यहाँ नीचे और मौलाना मोहम्मद आजम तारिक की स्टोरी आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब करने और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।